स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे 1/x² प्लस ए स्क्वायर का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट वी सपोज दैट y इज इक्वल टू 1/x² प्लस ए स्क्वायर। नाउ वी नो दैट we cannot factorize x square plus a square as a real factor. So we factorize this x square plus a square as imaginary factor. We know that x minus a ia into x plus ia. This can be written as a minus b into a plus b, a square minus b square. So this is x square minus ia whole square, and this can be written as x square minus I square a square, and we know that I square is equal to minus 1, so we can write this is minus 1 into a square. Now this minus minus multiply, we get x square plus a square. So in place of x square plus a square, we can write x plus ia into x minus I. Now we factorize x square plus a square as x plus ia into x minus ia. Now we use partial fraction, so we can write x plus ia into x minus ia. अब हम यहाँ पर 1/x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए का फैक्टर करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं सिंस दीज आर द लीनियर फैक्टर्स, रैखिक बहुपद, सो वी कैन राइट दिस a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस आई ए प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर x minus i a. Now we take LCM. On right hand side we get x plus ia into x minus ia. We write this a into x minus ia plus b into x plus ia, and there x plus ia into x minus ia. We know that in the both side x plus ia and x minus ia in the denominator will be cancelled. So we get 1 is equal to a into x minus ia plus b into x plus ia. Now we find unknown capital A and capital B. So we put x minus ia is equal to 0. So here we get x equal to ia. So 1 is equal to a into 0 plus b into ia plus ia. In place of x we put x equal to ia. आप देख सकते हैं a into 0 0 हो गया, b ia plus ia, this is 2ia. So we get b is equal to 1 upon 2ia. Similarly we find out value of capital A unknown. So again put x plus ia, that is x plus ia is equal to 0, that is x equal to minus ia. So we could get a1 is equal to a into minus ia plus b into 0. So when we add minus a and minus a, we get minus 2ia plus 0 into b, that is 0. Here we get a is equal to minus 1 upon 2ia. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, इसके फैक्टर करने के लिए रियल फैक्टर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इमेजिनरी फैक्टर किए गए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equal to a plus b into a minus b होता है, so we can write x square minus ia का whole square. ia whole square can be written as I square into a square, and also we know that I square is equal to minus 1,
So we put I value of I square is equal to minus 1. And when multiply this minus this is equal to plus, so x square plus a square can be written as x minus ia into x plus ia. Again partial fraction, we get partial fraction of this fraction, so we can write this a upon first linear factor x plus ia plus b upon second linear factor x minus ia. On the right hand side we take LCM x plus ia and x minus ia. We see on the both side, left hand side and right hand side, the denominator is same, so we cancel out this. We get 1 is equal to a into x minus ia plus b into x plus ia. Now we find value of unknowns capital A and capital B. So we put x minus ia is equal to 0. That is, when we transform ia on the right hand side, we get x equal to ia. Now put value of x is equal to ia in above equation. We get a into x minus ia is equal to 0 plus b, and in place of x we put ia plus ia. So a into 0, that is 0, and ia plus ia we get 2ia. So value of the unknown capital B is equal to 1 upon 2ia. In the similar way we can also find the value of capital A. So we put again x plus ia is equal to 0. When we transform ia on the right hand side, we get x equal to minus ia. So we put x in place of x equal to minus ia and minus ia plus b into minus ia plus ia, that is 0. So b into 0, that is 0, and minus ia and minus ia, we add this, we get minus 2ia. So here we can conclude that capital A is equal to minus 1 upon 2ia. Now put value of capital A and capital B in this partial fraction and again put on here. We get y is equal to minus 1 upon 2ia into x plus ia plus 1 upon 2ia into x minus i. आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ये फैक्टर किए गए हैं, ये रियल फैक्टर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसके इमेजिनरी फैक्टर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस आई किए गए हैं। उसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया गया है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कैपिटल ए अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस कैपिटल बी अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर, इसके राइट हैंड साइड में एलसीएम लिया गया है, दोनों साइड से डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कैंसिल हो गया है, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस आई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस आई ए। अब यहाँ पर कैपिटल ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस आई ए को 0 लिया गया है, आई ए को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो x की वैल्यू आई ए हो जाएगी। तो यहाँ पर x माइनस आई ए के प्लेस पे 0 पुट कर दिया है और x के प्लेस पे आई ए पुट कर दिया है। अब ये आई ए और आई ए ऐड हो जाएगा तो ये 2 आई ए बन जाएगा और a इंटू 0 दैट इज 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई ए आ गई। Similarly, when we put x plus ia is equal to 0, तो x plus ia को 0 पुट किया गया है, तो ia को जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो x की वैल्यू माइनस ia हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस ia यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, तो माइनस ia प्लस b इंटू एक्स प्लस आई के प्लेस पे 0 रख देंगे तो b इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस ia माइनस 2 ia हो जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 ia आ जाएगी। अब कैपिटल A और b की वैल्यू उठाकर यहाँ पर इस पार्शियल फ्रैक्शन में रखेंगे, फिर उसको उठाकर यहाँ पे आपको रखना है। अब आप देख सकते हैं कि बोथ टर्म में से 1 अपॉन 2 ia कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 ia, और चूंकि ये टर्म पॉजिटिव है so we can write this first and this is negative so we can write this. Now we can write this when we take x minus ia and x plus ia in the numerator, the power of these terms will be minus 1. So y is equal to 1 upon 2 ia and x minus ia whole power minus 1 minus x plus ia की whole power minus 1। यहाँ पर हमने x माइनस आई और x प्लस आई को न्यूमरेटर में ले गए हैं, अंश में ले गए हैं, तो इसकी पावर जो होगी उसका साइन चेंज हो गया, यहाँ पे पावर माइनस 1 हो जाएगी। अब वो साइड डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम, तो डिफरेंशिएट n टाइम्स बोथ साइड्स, इसके लिए ऑपरेटर लगाना पड़ेगा,
तो ऑपरेटर हो गया डी एन वाई इज इक्वल टू 1/2 आई, ये कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रहेगा, आउटसाइड द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी एन एक्स माइनस ए होल पावर -1 एंड डी एन एक्स प्लस आई ए होल पावर -1. Now when we differentiate y n times, we can write this as yn or 1/2y, and also we know that ax plus b whole power -1 का जो nth डेरिवेटिव होता है, we know that dn ax plus b whole power -1 is equal to -1 की पावर n फैक्टोरियल n a to the power n और ax plus b की पावर -n-1. So we can write this from this formula. We can write this -1 की पावर n factorial n, and in place of a this is 1 because here the coefficient of x is 1. So x minus ia whole power -n-1. Similarly, when we differentiate x plus ia की power -1 in n time, we can write -1 to the power n factorial n and x plus ia की whole power -n-1. So we see -1 to the power n factorial n in both the terms. We take common outside the bracket. So we write yn is equal to -1 की power n factorial n upon 2ia और x minus ia की power n-1 and x plus ia की whole power -n-1. यहाँ पर हमने क्या किया, इसको n टाइम डिफरेंशिएट किया गया है बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट करने के लिए ऑपरेटर लगाएंगे dn y, ये 1/2ia क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे, आउटसाइड द डिफरेंशियल ऑपरेटर we can write dn x minus i की पावर -1 and dn x plus i की पावर -1. And we know that the formula of ax plus b की पावर -1 of nth derivative is -1 to the power n factorial n a to the power n ax plus b की whole power -n-1. इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये लिखा जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n और a यहाँ पर चूंकि x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1. Here the coefficient of x is a, but here the coefficient of x is 1. So 1 की power n that is 1. So here we write x minus ia की power -n-1. Similarly x plus ia की power -1 का जब आप डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये -1 की पावर n फैक्टोरियल n और x plus ia की पावर -n-1 हो जाएगा. अब दोनों टर्म में से आप देख सकते हैं -1 की पावर n फैक्टोरियल को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा ये मिल गया. अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर डिमॉयट थ्योरम का यूज करा जाएगा. तो डिमॉयट थ्योरम के लिए सबसे पहले we put x is equal to r cos theta and a is equal to r sin theta. If we add square of these two x and a, we get x square plus a square is equal to r square. And if we divide a by x, we get theta is equal to tan inverse a upon x, because when we divide r sin theta by r cos theta, r cancel, sin theta upon cos theta tan theta is equal to a by x. So we can write theta is equal to tan inverse a by x. Now we use Demart theorem here. We get here we use Demart theorem. So x minus ia, we know that x minus ix is equal to r cos theta minus ia is equal to r sin theta. Taking r in both the terms, we get cos theta minus I sin theta, and also we know that cos theta minus I sin theta is written as e to the power minus I theta. Similarly, x plus ia, we write r cos theta plus ir sin theta. Taking common r in both the terms, we get cos theta plus I sin theta. So here this is written as e to the power I theta. Now we know that here power is -n-1 in both x minus ia and x plus ia. So raising power in both the sides
minus n minus 1. So we get x minus ia whole power minus 1, that is r to the power minus n minus 1 e to the power minus I theta whole power minus n minus 1. And we know that these powers are multiplied, so this minus and minus multiplied by plus, we get r to the power minus n minus 1 e to the power I n plus 1 theta. So we can write this cos n plus 1 theta plus I sin n plus 1 theta. So we can write this as r to the power minus n minus 1 into cos n plus 1 theta plus I sin n plus 1 theta. Because we know that e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta. Similarly, when we raise power minus n minus 1 on x plus ia is equal to r to the power minus n minus 1 or e to the power minus times n plus 1 I theta. So we can write this r to the power minus n minus 1 cos n plus 1 theta minus I sin n plus 1 theta. Now subtract this one and this. Subtract 1 and 2. We get, when we subtract 1 from 2, we get x minus ia whole power minus n minus 1 minus x plus ia whole power minus n minus 1. We take common r to the power minus n minus 1, and when we subtract this, cos term will be cancelled and sin term will be added up, since this is 2i sin n plus 1 theta. So here r to the power n minus 1 value we can find here, r is equal to a upon sin theta. So we put this r value, this is a to the power minus n minus 1 and sin theta to the power minus n minus 1. So this can be written as sin to the power n plus 1 theta into 2i sin n plus 1 theta. Now we put this value of x minus ia to the whole power minus n minus 1 minus x plus ia whole power minus n minus 1 in this yn. We get value of yn is equal to minus 1 to the power n factorial n upon 2ia into 2i a to the power minus n minus 1 sin to the power n plus 1 theta into sin n plus 1 theta. Now we cancel this 2i and we take this a in the denominator, go to the numerator, we get minus 1 to the power n factorial n a to the power minus n minus 2 sin to the power n plus 1 theta into sin n plus 1 theta. So here we can write theta is equal to tan inverse x by a by f. देखिए इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर करेंगे। फैक्टर यहाँ पर रियल फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए हमको इमेजिनरी फैक्टर करने पड़ेंगे। इमेजिनरी फैक्टर वी नो दैट x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूले से, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखाता है। a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे आई ए है, तो इसको x का स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस
आई ए का होल स्क्वायर को आई स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमको पता है वी नो दैट आई स्क्वायर इक्वल टू -1, so we put value of I square that is -1. When we multiply this minus and this minus we get plus, so x square plus a square को हम x minus ia into x plus ia लिख सकते हैं, so we can write x square plus a square as x minus ia into x plus ia. Now अब हम इस 1 upon x plus ia into x minus ia का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्यों करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन? क्योंकि हमको कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं पता है जिससे इसका नेट डेरिवेटिव निकाल सकें, तो इसके लिए हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन करा है। वी नाउ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन, सो इसको लिखेंगे a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर दैट इज x प्लस ia प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर दैट इज x माइनस ia। we take LCM x plus ia into x minus ia, दोनों साइड में हमने LCM लिया है x plus ia into x minus ia। आप देख सकते हैं कि बोथ साइड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a into x minus ia plus b into x plus ia हो गया। on the both side denominator is same, so this is cancel out. now x minus ia, जब हम x minus ia की वैल्यू a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस ia को एक बार 0 रखेंगे तो s की वैल्यू ia मिलेगी हमको, क्योंकि ia को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का ia हो जाएगा। यहाँ पर s के प्लेस पे ia रखेंगे, ia माइनस ia 0 हो जाएगा, यहाँ पे ia रखेंगे ia प्लस ia 2ia हो जाएगा, और यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू 1/2ia आ जाएगी। अब हम x प्लस ia को 0 पुट करेंगे तो ia को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो s की वैल्यू माइनस ia हो जाएगी, x प्लस ia की जगह 0 पुट कर दिया और s की जगह माइनस ia मिलके -2ia हो गया, तो कैपिटल A की वैल्यू -1/2ia हो जाएगी। अब कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों टर्म में, बोथ टर्म में 1/2ia कॉमन मिल रहा है, तो ये 1/x माइनस ia माइनस 1/x प्लस ia हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको न्यूमरेटर में आएंगे तो इसकी पावर चूंकि यहाँ 1 है, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, इसमें भी x प्लस i की पावर -1 हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड n टाइम्स, तो इसके लिए ऑपरेटर लगाएंगे dny dn dn, और चूंकि ये 1/2ia कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखा जाएगा। अब हमको पता है कि वी नो दैट ax plus b की पावर -1 का नेट डेरिवेटिव होता है -1 फैक्टोरियल a की पावर n ax plus b की पावर -n-1। इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है जबकि यहाँ कोफिशिएंट a है, तो 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा, वो किसी से मल्टीप्लाई होगा वही संख्या आएगी, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हो गया -1 फैक्टोरियल x माइनस ia की पावर -n-1। सिमिलरली x प्लस ia की होल पावर -1 का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये -1 फैक्टोरियल और x प्लस ia की पावर -n-1 हो जाएगा। आप बोथ टर्म में से देख सकते हैं -1 फैक्टोरियल कॉमन मिल रहा है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ बचा x माइनस आई की पावर -n-1, यहाँ पर x प्लस आई की पावर -n-1, दोनों टर्म में। अब इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो रियल टर्म में है, यहाँ पर i का टर्म आ गया तो इसको हम इसलिए x के प्लेस पे r cos थीटा और a के प्लेस पे r sin थीटा पुट करेंगे, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो होगा वो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। r स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर आ जाएगी। इसी प्रकार r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू a बाई x होगा। r sin थीटा जब r cos थीटा डिवाइड होगा तो r कैंसिल होगा, sin अपॉन cos tan बन जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन x, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x हो जाएगा। अब हम x माइनस ia जो है इसमें x की वैल्यू r cos थीटा और a के प्लेस पे r sin थीटा पुट करेंगे। यहाँ पे आप दोनों टर्म में देख सकते हैं r कॉमन मिलेगा तो cos थीटा माइनस i sin थीटा हो जाएगा, इसको e की पावर माइनस i थीटा लिखेंगे। इसी तरीके से x प्लस ia में x की जगह r cos थीटा और a की जगह r sin थीटा लिखेंगे, दोनों में से r कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा, फिर r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा को e की पावर i थीटा लिखा जाता है, cos थीटा माइनस i sin थीटा को e की पावर माइनस i थीटा लिखा जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर -n-1 है, x माइनस ia की होल पावर -n-1 और x प्लस ia की होल पावर -n-1 है, तो इसमें हम बोथ साइड में पावर n-1 को रेज कर देंगे -n-1 को, तो r की पावर -n-1 हो जाएगी
और e की पावर माइनस आई थीटा की पावर भी माइनस एन माइनस वन हो जाएगी। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसलिए माइनस माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं e की पावर आई थीटा को फिर हम cos के टर्म में चेंज करेंगे, cos और sin के टर्म में, तो इसको लिखेंगे e की cos n प्लस वन थीटा प्लस आई sin n प्लस वन थीटा। अब हम यहाँ पर जो x प्लस आई ए है, इसमें x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा रखने के बाद ये r e की पावर आई थीटा मिला था, इसमें बोथ साइड में पावर माइनस एन माइनस वन रेस कर देंगे। जब पावर e की पावर आई थीटा में पावर माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई होगी तो उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर माइनस एन प्लस वन आई थीटा लिखा जाएगा। e की पावर माइनस आई थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आई sin थीटा, तो e की पावर माइनस tan n प्लस वन आई थीटा को लिख लिया cos n प्लस वन थीटा माइनस आई sin n प्लस वन थीटा। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 इसको माइनस कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन x माइनस आई की पावर माइनस n माइनस वन में से x प्लस आई की पावर माइनस n माइनस वन को माइनस किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से r की पावर माइनस n माइनस वन कॉमन मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये cos का टर्म कैंसिल हो जाएगा और sin का टर्म ऐड हो जाएगा, तो 2i sin n प्लस वन थीटा हो जाएगा। इन दोनों में से 2i ये लिखा हुआ है, और r की वैल्यू जो माइनस एन माइनस वन है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं, r की वैल्यू a अपॉन साइन थीटा होगी। तो जब r की वैल्यू a अपॉन साइन थीटा आप यहाँ पर रखेंगे तो e की पावर माइनस एन माइनस वन हो जाएगी, क्योंकि r की पावर माइनस एन माइनस वन है, और साइन की पावर माइनस एन माइनस, यहाँ पर से r की वैल्यू a अपॉन साइन थीटा होगी, तो अपॉन में साइन की पावर माइनस एन माइनस वन होगी, उसको जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो साइन की पावर n प्लस वन थीटा बन जाएगा, इनटू में साइन n प्लस वन थीटा। अब ये वैल्यू जो आपकी आई है x माइनस आई की पावर माइनस एन माइनस वन माइनस एक्स प्लस आई की होल पावर माइनस एन माइनस वन को इस y में रख देंगे। रखने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर से 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो पावर में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पावर 1 है वो न्यूमरेटर में जाएगी, माइनस वन होगी वो इस माइनस वन पावर में ऐड होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब y इक्वल माइनस एन पावर n फैक्टोरियल a टू पावर माइनस एन माइनस 2 sin की पावर n प्लस वन थीटा इंटू साइन n प्लस वन थीटा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x आएगा। थैंक यू।